नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर में बच्चों से भरी स्कूल बस हुई हादसे का शिकार, निर्माणाधीन पुलिया से टकराई। राजकीय सम्मान के साथ कल होगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। लखनऊ में छात्र को साइबर ठगों ने 4 दिन तक किया डिजिटल अरेस्ट, उड़ाए 2 लाख रुपए। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हुई बूंदाबांदी, 12 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। गुजरात के वलसाड जिले के वापी के चीरी ओडिया बाग में 7 साल के बच्चे की लाश मिली है। बच्चा 25 दिसंबर रात 9 बजे के करीब गुम हो गया था, जिसकी रिपोर्ट डंगरा पुलिस चौकी में दर्ज की गई थी। अगले दिन बच्चे की लाश झाड़ियों में पाई गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। एसपी डॉक्टर करण राज बघेल ने अपराधी को जल्द पकड़ने के लिए एक टीम गठित की है। साहब, मारू नाम भावेश कुमार गुलाबभाई पटेल है। રહેવાસી છીરી વડિયાવાડનો રહેવાસી છું। અહીંયા મારી ચાલીમાં લગભગ 4 મહિનાથી એક પરિવાર રહે છે, જેમના સન ગઈ રાત્રે 9:30 વાગ્યાથી લાપતા હતો, જેમણે શોધખોળ કરી હતી। અમને જણાવ્યું હતું તો અમે બી શોધખોળ એની કરી હતી, તો ના મળેલા તો સવારના એ લોકો પાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરવા માટે ગયા હતા। અહીંયા પૂરા પોલીસની સ્ટાફ આવી ગયો હતો। વલસાડ જિલ્લાની દરેક પોલીસ અહીંયા આવી હતી, જેમણે સહયોગ કર્યો છે અને બાળક હાલમાં 3 વાગ્યા પછી 3:30 ની આસપાસમાં મૂત હાલતમાં મળી આવ્યો છે। શું લાગે, કોઈ શંકા કે એવું ખરું આપને? કઈ શંકા તો સાહેબ એમનું અપહરણ કરીને મર્ડર થયું એવું લાગે છે। અચ્છા, કયા વિસ્તારમાં? એ છીરી વડિયાવાડની બોર્ડર લાગે છે સાહેબ। જંગલ એરિયો હતો, એમાં એના પપ્પા મમ્મી વડાપાઉંની નાસ્તાની કેન્ટીન ચલાવે છે, જ્યાં બાળક રાત્રે સાથે આવેલો હતો ને રમતા રમતા ખોવાયેલો હતો। ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનના છીરી વિસ્તાર રણછોડનગરમાં ગઈકાલે રાત્રે 9:30 વાગ્યાની આસપાસ અહીંયા જે રણછોડનગરની બહાર જે ચાની કીટલી અને નાસ્તાની જે ટપરી છે, એ દુકાન પર કામ કરતા પતિ પત્નીનો દીકરો જે 7 વર્ષનો છે એ ગુમ થયેલ હતો। આખી રાત એ લોકોએ શોધખોળ કરી હતી, પરંતુ અનફોર્ચ્યુનેટલી એમણે પોલીસને જાણ કરી નહોતી। આજે સવારે 11 વાગ્યાના સુમારે ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનમાં એમણે ફરિયાદ આપવા માટે આવ્યા હતા। તાત્કાલિક બાળકના ગુમ થયા અંગેની અપહરણનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને પોલીસની અલગ અલગ ટીમો કામે લાગેલી હતી। अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमराનું સર્ચ, એની સાથે સાથે બાળક કયા કયા વિસ્તારમાં ક્યાં ક્યાં કોની સાથે રમતું હતું એ બાબતે સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું। અને જે રણછોડનગર વિસ્તારની પાછળનો ખુલ્લો મેદાનનો એરિયા અને ઝાડીઓનો જે એરિયા છે, જે અમુક પ્રાઇવેટ જમીનો છે અને જે ઝાડી ઝાંખરા છે, અનફોર્ચ્યુનેટલી એ વિસ્તારમાંથી સાંજે 4 વાગ્યાની આસપાસ આ બાળકની મૃત હાલતમાં બાળક મળી આવ્યું છે। ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું મામલતદારની હાજરીમાં અને એફએસની હાજરીમાં કરવામાં આવ્યું છે। આ જે અપહરણનો ગુનો હતો એની અંદર હત્યાની કલમોની ઉમેરો કરવામાં આવશે અને આ બાબતે જે પણ વ્યક્તિ છે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ, એને શોધખોળ કરવા એ દિશામાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, એસઓજી, વાપી ટાઉન, ડુંગરા તમામ ટીમો કામે લગાડેલી છે અને આરોપી જલ્દીમાં જલ્દી પકડાઈ જાય એ બાબતે મહેનત ચાલુ છે। સર, બોડી પર કોઈ ઇન્જરી નથી? પ્રાથમિક રીતે શું લાગે છે? પ્રાથમિક રીતે બાળકને કોઈ શાર્પ કટિંગ વેપનથી એનું હત્યા કરવામાં આવી હોય એવું લાગી રહ્યું છે। વધુ હકીકત એફએસએલ ના રિપોર્ટ અને સાથે સાથે જે ફોરેન્સિક પીએમ કરાવીશું એના રિપોર્ટના આધારે બાળકની હત્યાનું ચોક્કસ કારણ આપણે જાણી શકીશું। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां सुदूर पहाड़ी इलाके में अवैध गांजा तस्करी का सीओ ने खुलासा किया है। सुदूर पहाड़ी इलाके में अवैध गांजा तस्करी का सीओ ने किया खुलासा। 3 तस्करों से लगभग 38 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किए गए। मोटरसाइकिल और लग्जरी कार से जंगल के रास्ते ये तस्कर गांजा की तस्करी करते थे। एक तस्कर मुराली नाम का हत्या के संबंध में 10 साल की सजा भी काट चुका है। चकिया थाना और चकरघट्टा थाने के निवासी हैं 2 तस्कर। एनडीपीएस एक्ट के तहत तीनों को जेल भेज दिया गया है। चकरघट्टा थाना क्षेत्र के केसार जंगल से पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। 38 किलो लगभग गांजा बरामद किया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सर, इनके बारे में थोड़ा बताएं, ये अभियुक्त कौन है और कैसे गांजा की सप्लाई करते हैं? कल दिनांक 25 दिसंबर 2024 को
थानाध्यक्ष चकरघट्टा भूपेंद्र कुमार निषाद और उनकी पुलिस टीम बॉर्डर के क्षेत्र में भ्रमणशील थी। अपराधों के अभिसूचना के संकलन में मामूर थी कि अचानक जो है केसार के जंगल में इन लोगों ने देखा कि 3 व्यक्ति, जिसमें एक मोटरसाइकिल और एक कार होंडा सिटी कार थी, के साथ 3 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिले, जिन्हें पुलिस ने रोक करके पूछताछ किया तो उनके कब्जे से लगभग 38 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ और उनके पास से 2 अदद वाहन, एक होंडा सिटी कार और एक मोटरसाइकिल मिली। पूछताछ में एक ने अपना नाम मुराली निवासी केशार बताया, दूसरे ने अपना नाम देवेंद्र कुमार और तीसरे ने अपना नाम निराला बताया, जो चकिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन तीनों लोगों ने बताया कि ये लोग बिहार के डूमर कुंड से सस्ते दाम में मादक पदार्थ गांजा की खरीदारी करते हैं और इसे जंगल के रास्ते चकिया और उसके आसपास क्षेत्रों में ले जा करके महंगे दामों में बेचते हैं। इनके जीविकोपार्जन का इन्होंने बताया कि यही साधन है। ये भी उल्लेखनीय है कि इसमें अभियुक्त मुराली 302 हत्या के मुकदमे में इसे 10 वर्ष की कारावास हुई है, जो 10 वर्ष की जेल की अवधि बिताने के बाद 3 महीना पूर्व छूटा है और पुनः इस तरह के अपराधों में लिप्त हो गया है। इन सभी के विरुद्ध थाना चकरघट्टा में कल अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। समय से इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सहारनपुर से एक बड़ी खबर, जहां पंचकुला देहरादून नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। गांव लाखनौर बाईपास हाईवे पर यह हादसा हुआ है। घने कोहरे के कारण 3 ट्रक और कारें आपस में टकरा गई थी। कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। थाना नागल क्षेत्र के गांव लाखनौर बाईपास हाईवे का ये पूरा मामला है। अगली खबर का रुख करेंगे हरियाणा के पंचकुला में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण की सोच को हरियाणा की मां बेटी ने एक नई दिशा दी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 90% विकलांग तेजस्विनी की मां हर्ष शर्मा को सम्मानित किया जाएगा। हर्ष शर्मा ने अपनी विकलांग बेटी को भजन गायिका बनाने में सफलता प्राप्त की। संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस पर हर्ष शर्मा को सम्मानित करने के लिए उन्हें न्योता भेजा है। सरकार ने भी हरियाणा की इस बेटी के सम्मान में 4 चांद लगाए हैं। यहाँ तक का सफर जो आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में क्या? हाँ जी, मेरा नाम मिसेस हर्ष शर्मा है और मुझे यूएन से इनवाइट आया है और ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में फर्स्ट मैं लेडी हूँ जो स्पेशल बच्चे की मदर को ऑनर किया जा रहा है। और उसका वो इनवाइट जो है उसके वो इनवाइट मुझे बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पुणे से मेरे को नॉमिनी किया उन्होंने और वहाँ उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया है। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांग बच्चों के लिए जो स्टेप उठाए हैं उसी का रिजल्ट ये है कि हिंदुस्तान से एक स्पेशल दिव्यांग बच्चा जो है वो यूएन में भगवान की कृपा से परफॉर्म भी करेगी। और मेरे को वुमेन्स डे पे 2-3 मिनट बोलने का रत्ना जोशी जी की उससे और जो मिसेस नड्डा एसओबी भारत की चेयरमैन है और प्रेसिडेंट है, उनका जो इन बच्चों के प्रति बहुत बड़ा स्नेह और सब बच्चों को साथ लेके जो चल रही हैं, इसीलिए आज सारे विश्व में इन बच्चों का नाम हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का
और प्रधानमंत्री मोदी जी का और मैडम नड्डा का, जिनकी ग्रेस से आज तेजस्विनी और मैं यूएन जा रहे हैं। मैम एक सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, ये किस चीज का है ये भी बता दीजिए। ये हमारा इनवाइट है, यूएन से जो इनवाइट आया है तेजस्विनी और मेरे लिए, तो ये बड़े गौरव की बात है, हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। और मैं सोचती हूँ कि ये हमारी जो संपूर्ण दिव्यांग बच्चे हैं और उनकी मदर्स है, ये उन सबको डेडिकेटेड है। और ये मैडम नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी जी और रत्ना जोशी जी, जिन्होंने बहुत एफर्ट किया है, बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जो प्रेसिडेंट है, और ये उन सब के एफर्ट से, और उन्होंने हमारी स्टोरी लाइक की, मेरी जर्नी जो है वो लाइक की, और वो चाहते हैं कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो और सब मदर्स और सब बच्चे ऐसे ही हार्ड वर्क करके इस मुकाम तक पहुंच जाए। अब अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, जर्नी तो तेजस्विनी जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था, हमने देखे जब बॉर्न हुई है तो बिल्कुल नॉर्मल थी, और थर्ड डे इसने फीड एक्सेप्ट नहीं की, इसको थर्ड डे पीजीआई रेफर कर दिया। तो 7th डे इसको इंटेस्टाइन ब्लॉकेज के लिए इसकी सर्जरी की गई, इसका पूरा स्टमक जो है वो सर्जरी की गई इसकी, और बस उसके बाद ये तकरीबन 5 साल ये हॉस्पिटल में रही, मतलब एक दिन घर आ जाना, फिर 2 महीने आईसीयू में, क्योंकि इसके आउटर स्टिचेस हील हो जाते थे, इंटरनल में पस पड़ जाती थी, तो फिर खोल के, तो ऐसे करके वहां पे इसको 2 बार डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया कि बच्चा ये नहीं सरवाइव करेगा। तो इसको वेंटिलेशन पे रखा, और वेंटिलेशन पे रखने के बाद जो ऑक्सीजन जो गई वो इसके ब्रेन को प्रॉपर नहीं पहुंच पाई, जिससे कि एज ए जो मेडिकल टर्म्स में बोला जाए कि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जिससे कि ब्रेन का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डेड हो गया। और ये वहां पे इसको पैरालिटिक अटैक्स भी आए और सीजर्स भी आने शुरू हो गए, मतलब कि कोई ऐसी जब इसको वहां ड्रिप लगाते थे तो ये इसकी स्किन जो है उसमें पानी भर जाता था, तो फिर सिर से इसके हेयर रिमूव करके सिर पे भी ड्रिप्स लगती थी इसकी। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि जो इस बच्ची ने फेस नहीं की, और 9 साल तक ये कॉट में ही रही है। जैसे बच्चे 40-40 साल के हो जाते हैं, आपने देखा ही होगा सीवियर रिटार्डेशन में बच्चे बीच में ही पॉटिंग ये वो सब बीच में, तो ऐसा ही था। और डॉक्टर ने बोला कि ये 25-30 साल की हो जाएगी, पर ये रहेगी 1 साल के बच्चे जितनी। तो इसने अभी चलना जो है वो 18-19 साल की एज में शुरू किया, तो और इसने हमें पहचानना भी 20 साल 21 साल की एज में शुरू किया, नहीं तो ये साउंड से रिकॉग्नाइज करती थी। और ये अभी भी टोटली डिपेंडेंट है, मतलब ऐसा बच्चा है कि अगर टेबल पे बैठा है तो इसको खाने को कुछ जैसे दे दिया तो ये खा लेगी, अदरवाइज ये नहीं है कि घर में अकेली है भूखी है तो कुछ निकाल के खा ले या कुछ लेके, नहीं, जहां बैठी है वहां बैठी है। और जो इसके 9 साल के दौरान जो इसने पेन और ये इसने मतलब ना इसकी नेक सीधी होती थी, ना लाइट ऑन ऑफ करी जाओ कुछ ब्लिंक ही नहीं करती थी ये, तो डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि बच्चा आपका ब्लाइंड है। तो उसके बाद क्या है कि ये बहुत ज्यादा रोती थी, मतलब 36 आवर्स कॉन्टिन्यूसली रोती थी, क्योंकि इसको इतनी पेन्स होती थी कि इसके जो सर्जरी के जख्म थे वो ही ठीक नहीं होते थे। इतनी छोटे बच्चे को एंटीबायोटिक्स जा जाके और कभी ब्लड पूरे ब्लड में इंफेक्शन हो गई, ऐसी प्रॉब्लम्स इस बच्चे ने फेस की हैं। तो ये था कि जॉइंट फैमिली थी घर में, और कुछ थोड़ा सा जैसे हर लेडी को होता है भजन वगैरह या ये सुनने का या गाने सुनने का तब आते थे। तो मैंने नोट किया कि जब भी ये अजय पोहंकर जी का गोविंद जय जय मैं बहुत सुनती थी, तो वो लगा के रखती थी तो ये सर्टन टाइम के लिए चुप हो जाती थी। तो मैंने नोट किया किचन में काम करते हुए कि ये मतलब फिर ये चुप हो जाती है, तो मैंने वो बार बार लगाना, तो थोड़ी देर के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि रेडियो पे लता जी का है मेरे वतन के लोगों, ये गाना ये आया और ये बिल्कुल चुप, इसका रोने की आवाज बिल्कुल बंद। तो मैं गई तो मैं
कैसेट मैंने अपने उससे मंगवाई, मैंने वो कैसेट लगाई तो ये फिर चुप। तो मैंने वो कम से कम 500 कैसेट्स इसको सुनाई। वो जब वो चले पूरा वो था उसमें ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, ये वाले सारे गाने। और ये मतलब 9 साल तक तो ये चीनी और नमक के उस पे पानी पे ही सरवाइव किया, कुछ भी इसको डाइजेस्ट नहीं होता था और बस रोना। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन यात्रा के लिए बड़ैती से गंगोत्री धाम तक ऑल वेदर रोड का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी ये कार्य अधूरा पड़ा है। रतौड़ी सेरा से आगे बंदरकोट में 2 जगहों पर संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण ये मार्ग अक्सर बंद और खुलता रहता है। संबंधित विभाग इन 2 स्थानों पर कार्य कर रहा है। हालांकि बारिश के कारण लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य में देरी की वजह से समय का उल्लंघन भी हो रहा है। प्रशासन ने यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए समय निर्धारित किया है, लेकिन यात्रियों को घंटों रुकना पड़ रहा है। दिन में काम करने से यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है और शीतकालीन यात्रा के दौरान लोग समय पर अपने घर नहीं पहुंच पा रहे। कहाँ जा रहे हैं? भाई साहब हम रवाई बरकोट टोला से आए हैं जी जी, हम उत्तरकाशी जा रहे हैं जी। तो कब से यहाँ सड़क बंद है? भाई साहब 1.25 घंटा करीबन तो हो गया है। आम जनता के लिए सरकार व्यवस्था करे या ठेकेदार व्यवस्था करे, कोई भी व्यवस्था करे, या जो कंपनी आ रखी है वो कंपनी व्यवस्था करे। किसके लिए? जनता के लिए, कि जनता परेशान न रहे। जनता के लिए कोई वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था हो जानी चाहिए। ये नहीं कि जहाँ इधर जनता के लिए इधर जनता के लिए सरकार अपनी वो कर रही है। ये कोई बात है क्या? मतलब आजकल ऐसे सर्दी का मौसम है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुजफ्फरनगर में थाना शाहपुर पुलिस ने बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 1 इंजन और वाहन काटने या खोलने के औजार बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। सर मुठभेड़ हुई है, क्या है मामला? आज थाना शाहपुर में आज चौकी इंचार्ज हरसौली और मैं फोर्स के बरवाला रोड स्वाति हॉस्पिटल के पास तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे। मुख्य द्वारा सूचना दी गई कि एक मोटरसाइकिल चोरों का जो गिरोह है उसमें एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति बैठे हैं। यदि आप इसको पकड़ेंगे तो आपके यहाँ की चोरी हुई मोटरसाइकिलें और भी केस सामने आएंगे। इस सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर मुखबिर ने इशारा किया कि ये मोटरसाइकिल वाले हैं, तो उनको रोका गया। रोकने पर वो तुरंत तेजी से मोटरसाइकिल आगे बढ़ा करके उन मोटरसाइकिल जो चोर है उनका पीछा किया गया। पीछा करने के बाद वो एक रोड पर बाएं तरफ मुड़ गए। बाएं पर जा करके जब उन्होंने देखा कि हम पुलिस से घिर गए तो उन्होंने मोटरसाइकिल गन्ने के खेत के पास में गिरा करके पुलिस पार्टी में फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसको तुरंत CSC शाहपुर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। विधिक आवश्यक कार्य भी की जा रही है। जो मोटरसाइकिल पर 2 और अन्य थे वो मौके का फायदा उठा करके गन्ने खेत में घुस गए। उसमें पुलिस ने कामिंग की। कामिंग के दौरान 2 अभियुक्त भी हिरासत में लिए गए हैं। उनसे पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर उन्होंने बताया कि यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर एक जगह वहाँ पर हमारी 2 व्यक्ति और हैं, जहाँ पर मोटरसाइकिल हमारी जो चोरी की हुई है वो वहाँ पर रखी हुई है। वहाँ पर उनकी निशानदेही पर वहाँ गए तो वहाँ पर देखा तो 2 अभियुक्त वो भी वहाँ थे और उनकी निशानदेही पर ही जिसमें 7 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी और 2 इंजन चेचिस और 1 इंजन और काटने के पार्ट्स वहां से बरामद हुए हैं। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाए। सर इनका कोई पहला कोई आपराधिक इतिहास?
हाँ, इसमें जिसके पैर में जो गोली लगी है ये एक जनपदीय का अभियुक्त है। इसके खिलाफ करीब 1 दर्जन चोरी के मुकदमे कायम हैं। इसने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर में कई जगह मोटरसाइकिल चोरी की हैं। इनका एक गिरोह है। आज ये गिरोह पकड़ में आया है। जांच कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुठभेड़ में कोई सिपाही पुलिसकर्मी भी घायल है? नहीं, मुठभेड़ में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। इनके पास से 2 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद। ठीक है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा स्थानीय बिजली घर पर चल रहा अनिश्चित धरना 8 दिन बाद भी बिना किसी प्रशासनिक ध्यान के जारी रहा। मंडलाध्यक्ष अशोक चौधरी का कहना है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा धरना जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बंदाहेड़ी और सहजवी में किसानों के खेतों के अंदर से 11,000 वोल्ट की लाइनें मनमानी तरीके से खींची गई है। भाकियू जिला सचिव कमलेश सिरोही ने कहा, किसानों का शोषण अब और सहन नहीं किया जाएगा। धरने को और उग्र करने की चेतावनी दी गई है, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि जो नकुड़ जो बिजली घर है उस पर आज ताले जड़ दिए गए हैं। और ताले जड़ दिए गए हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा। ये ताले क्यों जड़े गए? क्योंकि इन्हें 8 दिन हो गए यहाँ पर बारिश हुई, सर्दी हुई, उसमें बैठे रहे, लेकिन उसके साथ साथ अब जो है यहाँ पर ताले जड़ दिए गए हैं। अधिकारी लोग जो है इनके बीच में आकर के बैठ चुके हैं और जो बिजली है वो सुचारू रूप से चल रही है। बाकी जो काम काज के उनके ऊपर जो है ताले जड़ दी गए हैं। तो हमारे साथ में किसान यूनियन टिकैत से जो है मंडल अध्यक्ष जी हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिरकार अब जो ताले जड़ दिए गए आखिरकार क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, क्योंकि 8 दिन हो गए कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। जी चौधरी साहब क्या कहेंगे? 8 दिन में अब आज ताले जड़ दिए गए, क्या कहेंगे? ताले एक काउंटर छोड़ कर जो किसान बिल जमा कर रहे सरकार की छूट है और सबका है। बहुत दुख का विषय है कि आज धरने का 8वां दिन है। रात जनपद के बिजली विभाग के एससी साहब, नकुड़ एसडीओ, मणकमऊ एसडीओ किसानों के बीच में आए, लेकिन यहाँ का एक्शन कोई जेई पिछले 7 दिन तक कोई नहीं आया। इसलिए यहाँ की कमेटी का जो निर्णय था 4 घंटे तालाबंदी होगी, कोई नहीं आएगा तो फिर सड़क जाम होगी। लेकिन आज एससी साहब का भी सूचना प्राप्त हुई, मैं भी किसानों के बीच में आ रहे, तो किसानों की जो समस्या हैं मैं सुनी जानी चाह। मान लिया एल&टी के ठेकेदार हैं, वे अपनी मर्जी तक जहाँ मर्जी में आवे खंबे गाड़ दो, जहाँ मर्जी में आवे पैड दो, किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसानों की ज़्यादातर समस्या ऐसी है कि मेरे खेत में बहुत पुराने जैसा ट्रांसफार्मर लग रहे, खंबे टूट रहे। पहले ऐसी जगह ट्रांसफार्मर लगाए 20-20 साल पहले कि वहाँ ना बुग्गी जा, उतारने में बहुत दिक्कत रहेगा। ट्रांसफार्मर जड़ गया या मरम्मत करनी किसी चीज़ की या फूज लगाना तो खेतों के बीच में है। तो हमें इनसे सुझाव दिया था कि इन्हें लाइन के नीचे किसान के पीछे हटाया दो जहाँ इनका रास्ता हो। वो काम नहीं कर रहे। क्या है? शिफ्टिंग का काम है। शिफ्टिंग का क्या हो गया भाई? मेरा खेत किसी का विवाद नहीं, अगर कहीं विवाद हो तो छोड़ दो। किसी का बिल ठीक नहीं हो रहा, कोई मीटर ऐसा आ रहा को सूरज तक ही चल रहा है मीटर, जब सूरज लिख रहा है तो वो चल जाए, बिजली हो तो चलता नहीं। तो कुछ किसानों की बिजली 10-10 हार्स पावर की 20-20 की कर दी, उनकी भाई जांच करो उनकी। कोई नकुड़ बिजली घर पे कुछ अधिकारी ऐसे हैं जैसा एक्शन है कि वो सरकार तक भी बड़ा हो गया। 7 दिन तक किसान बैठे, वो इनकी सुध लेना आया ही नहीं आज तक। आज 8वां दिन है, आज भी नहीं आता, पता नहीं कहाँ है। सरकार को बदनाम भी कुछ अधिकारी कर रहे। ये किसान शांति प्रिय बैठा। आज यहाँ कुछ तालाबंदी हुई, कुछ लगा कि हाँ अधिकारियों में पता लगा कि भाई वहाँ किसान बैठे, तो हम तो ये कहा कि जब 17 डिग्री तापमान में किसान बैठा, यहाँ कोई इनकी सुध लेन नहीं आ रहा। ये किसान है, किसान वो तो कहे किसान नहीं भगवान है, भगवान यहाँ बैठा तो कोई पूछण भी नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पूछ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो इन अधिकारियों को कुर्सी मिली या कन्यादान में मिली क्या कुर्सी, या जनता की सेवा करने के लिए कुर्सी मिले, क्यों नहीं कर रहे हैं जनता के काम? अगर गलत काम हो तो बताओ ये गलत काम है, और जो सही है
तो सही क्यों नहीं कर रहे? तो देखो क्या होगा, जो होगा। हमने अपनी समस्या बताई रहा था, ऐसी साहब है, एक्शन तो भाई यहाँ नहीं रहा। तो ताले जड़ने से जो ताले जड़ दिए गए, इससे कोई समाधान होने वाला है कि नहीं होने वाला है? क्योंकि ताले जड़ना कोई समाधान थोड़ी हो गया। नहीं, वो तो यहाँ की कमेटी का निर्णय था भाई, 4 घंटे सांके की तो बिजली घर पर ताले लगेंगे। अधिकारियों ने पता लगा भाई जी यहाँ बैठ ही नहीं रहा कोई, तब तक तो खाली पड़े हैं। अच्छा, एक्शन नौकरी कहाँ से ले रहा है? 10 दिन तो आया नहीं, यहाँ 8 दिन तो यहाँ नहीं रहा, तो उसमें कहाँ अधिकारी मूंद रखे? वो तो खाली है दफ्तर। इसकी नौकरी भी कटनी चाह, इसकी तनख्वाह भी कटनी चाह। जो अधिकारी यहाँ नहीं आते, शासन का आदेश है कि रात्रि विश्राम भी बिजली घर पर होगा, और यहाँ 8 दिन तक किसान बैठे, एक भी अधिकारी का विश्राम नहीं हो रहा है यहाँ, तो इनकी तनख्वाह भी तो कटनी चाह। हम दोनों देखा है ना, इनके प्रति भी कुछ है किसान पे खड़ा। आज तो सारे आ रहे हैं, एसडीओ भी आ रहे हैं, आज तो सारे आ रहे हैं। एसडीओ भी हैं, एसडीओ साहब एक तो जो नकुड़ वाले हैं, मैं छुट्टी पे थे, मैं रात आगे थे, माणक मऊ वाले रात थे, एसडीओ साहब किसानों के बीच में आए, एससी साहब भी थे, उनसे समस्या बताई, तो उनसे समस्या बताई थी। मैं कह रहे थे दोपहर तक मैं भी किसानों के बीच में पहुंचूंगा। अब जैसी भी बात होगी फिर शाम को आपको बताई जाएगी, नहीं तो धरना ये अनिश्चितकालीन है, शांति पीरियड चलेगा। जैसे 1 महीना हो जाए, 1 साल हो जाए, तो 13 महीने तक वहाँ चले नहीं, तो मैंने दिखता पर शांति पीरियड। किसान के हाथ में क्या है? किसान अपनी बात ही तो बतावे, अपनी मांग है। ये ठेकेदारों ने कौन सा लाइसेंस मिला, कानून की कौन सी किताब में लिखा किसान का काम नहीं होना? धमकी दें, अगर जो ज्यादा बोल लोगे तो जेल में ठोक देंगे। भाई भेज दो इन्हें, जेल में ठा गए ना, पाकिस्तान क्यों नहीं भिजवाते? इनते सट्टा ही खत्म होगा सारा सप्पा ही है जी। तो यूं नहीं चलने का काम। किसानों का बिजली घर, किसान यहाँ के रहने वाले हैं क्या कोई किराए के? ये तो नकुड़ ब्लाक के किसान हैं, ये तो नकुड़ ब्लाक का आयु। फिर इस तहसील में एक ब्लाक गंगोवर, एक सरसावा, फिर 3 का होगा। नहीं मनेगी तो कुछ बात, फिर सारे जनपद का होगा। बात मनेगी जरूर, बात मनवाएगी जाएगा किसान यंत्र है। यह अधिकारी ने बताओगे आपकी गलत बात है। जय जवान जय किसान। तो देखिएगा, हालांकि अभी किसानों ने यहाँ पर 4 घंटे के लिए जो है, जो ताला है उसको यहाँ पर जड़ दिया गया है। ये कह रहे हैं कि अधिकारी लोग यहाँ 8 दिन से नहीं आए, 8 दिन के आने के बाद अब भी यहाँ पर कोई काम ऐसा नहीं रुकेगा, काम चल रहा है सारा। लेकिन यहाँ पर इनकी मांगे जो है, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की गई कि इनकी बातें मान ली गई हो, क्योंकि इनके कुछ बिजली के लेकर के समस्याएं थी, उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। तो ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक अधेड़ व्यक्ति का शव गंगा में तैरते हुए मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चंदौली में मिला एक अधेड़ व्यक्ति का शव गंगा में तैरते हुए। शव की हुई शिनाख्त वाराणसी के बराई का रहने वाला था। मृतक का नाम राजेश कुमार बताया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। बलुआ थाना क्षेत्र के कांवर समीप गंगा नदी का ये मामला है। और वहीं चंदौली में ही पुलिस ने अवैध शराब बरामद किए हैं। पुलिस ने अवैध शराब बरामद किए। सफेद स्कॉर्पियो से 370 लीटर अवैध शराब बरामद हुए हैं। 8 बैग में थे विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब। अवैध शराबों को बिहार ले जा रहे थे ये तस्कर। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 शराब तस्कर फरार हो चुके हैं। बरामद शराब की अनुमति कीमत लगभग 5 लाख बताई गई है। शैयद राजा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 नौबतपुर पुलिस बूथ के पास पुलिस को ये सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के नकुड़ थाना क्षेत्र के सत्संग भवन के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा पुलिस की गिरफ्त से बचकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक बाइक, अवैध हथियार और 5,377 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने इस मुठभेड़ के बाद अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। आज 26 दिसंबर 2024 को थाना नकुड़ पुलिस की टीम
अंबेठा खेड़ा अफगान मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। तभी अंबेठा की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया गया। पुलिस की चेकिंग देख दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल घुमाकर अंबेठा की तरफ भागने लगे तथा आम के बाग जो रोड के किनारे है उसकी तरफ भागने लगे। इसके बाद पुलिस पार्टी द्वारा उन दोनों का पीछा किया गया। पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी तथा जो दूसरा अभियुक्त है उसे पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी करके पकड़ लिया है। घायल अभियुक्त की पहचान जुनैद पुत्र इकबाल निवासी ग्राम खैरसाल थाना गंगो के रूप में हुई है तथा दूसरा व्यक्ति जो कि इसका भाई है, इसका नाम इफ्तिकार पुत्र इकबाल निवासी ग्राम खैरसाल थाना गंगो के रूप में हुई है। ये दोनों अभियुक्त जो हैं कुछ दिनों पूर्व अंबेठा में हुई जन सेवा केंद्र में भी लूट के वांछित अभियुक्त हैं और इन दोनों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे और 6 जिंदा राउंड 315 बोर के बरामद हुए हैं तथा जो लूट में एक मोबाइल जो लूटा गया था वो भी बरामद हुआ है। इसके अलावा इनसे 5,370 रुपए के अराउंड बरामद हुए हैं। इस प्रकरण में थाना नकुड़ पर एक मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है तथा जो घायल अभियुक्त है उसे इलाज के लिए अस्पताल रेफर कराया गया है और इसमें थाना नकुड़ पर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ पुलिस की चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से लूटी गई चेन 13,060 रुपए, एक चेन, पीली धातु की अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद किए गए। ये बदमाश थाना हापुड़ देहात और हापुड़ नगर क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की घटनाओं में वंचित चल रहे थे और इनके ऊपर हापुड़ और गाजियाबाद जनपदों में चेन स्नेचिंग, लूट और आर्म्स एक्ट से संबंधित अपराधों के करीब आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आपराधिक मामलों की जानकारी अन्य जनपदों और थानों से प्राप्त की जा रही है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। हापुड़ नगर क्षेत्र में रोजाना की तरह रूटीन चेकिंग की जा रही थी तो मुखबिर खास ने सूचना दी कि जिस अभियुक्त को सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ढूंढ रही है वो आज हापुड़ नगर क्षेत्र में मामूर है और कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है। तो चेकिंग बढ़ाएगी। चेकिंग के दौरान एक काली टीवीएस की स्कूटी को रुकने का इशारा किया गया तो वो ना रुकते हुए आगे की तरफ बढ़ा और तेज गति से अपने स्कूटी की स्पीड जो है तेज कर दी। पुलिस उसके पीछे गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और उसके पास से एक सैमसंग फोल्ड फोन, 13,060 रुपए, एक चैन और 2 जिंदा कारतूस, एक फूका कारतूस और 315 बोर का एक तमंचा और एक काली स्कूटी बरामद हुई है। इसका नाम मोहम्मद आमिर कुरैशी पुत्र आश मोहम्मद है और ये किराए पर कभी लौड़ी क्षेत्र में रहता था, अभी फिलहाल में हापुड़ देहात के चन्नापुरी में रहता था। आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। अगली खबर उत्तराखंड के पौड़ी से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग करने और रेस ड्राइविंग करने वालों के विरोध कठोर कार्रवाई करने और यातायात नियमों के प्रति आम जन को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके तहत जनवरी 2024 से 26 दिसंबर 2024 तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग, रेस ड्राइविंग और यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले 37,418 वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इसमें 750 शराब पीकर वाहन चलाने वालों और 1,301 वाहनों को सीज किया गया। 551 ओवरलोडिंग करने वाले, 735 रेस ड्राइविंग करने वाले और 862 ओवर स्पीड वाले चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा 1,575 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रशंसा की गई। इस अभियान के दौरान आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल पुलिस के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें
पूरे वर्ष भर में शराब पीकर वाहन चलाने व ओवरलोडिंग करते हुए वाहन चलाने ऐसे चालकों के विरुद्ध लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें पूरे वर्ष भर में 1300 से ज़्यादा वाहनों को सीज किया गया है। वो कुल 1575 वाहन चालकों के डीएल भी निरस्तीकरण किए गए हैं। मेरा जनता से अनुरोध है कि इस नए वर्ष के अवसर पर आप कृपया नशे में वाहन ना चलाएं या ओवरलोड करते हुए वाहन ना चलाएं। अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ही वाहन को चलाएं। गुजरात के भावनगर से सिद्धसर 25 वारिया इलाके में ट्यूशन क्लास के दौरान बच्चों के बीच मारपीट होने की खबर सामने आई है। ये मामूली विवाद दो परिवारों के बीच झड़प में बदल गया। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कई नाबालिग बच्चे घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए शहर के सर टी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि पुलिस ने बिना उचित आदेश के नाबालिगों पर लाठी चार्ज किया, जिससे हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को स्थिति को संभालने के लिए संयम दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उल्टा निर्दोष बच्चों पर कार्रवाई कर दी। अब सवाल उठ रहा है कि यदि ये आरोप साबित होते हैं तो दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होगी? क्या पुलिस कमिश्नर इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे? इस घटना ने स्थानीय समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। તારું નામ? સાહિલ ઇસ્માઇલભાઈ. શું થયું? હું દૂધ લેવા જતો હતો ઘરેથી અને રસ્તામાં ત્યાં કાંઈક માથાકૂટ થઈ હતી ને પોલીસવાળાએ મને માર્યો રસ્તામાં. શું લેવા મારવામાં આવ્યા ભાઈ? હું દૂધ લેવા જતો હતો ત્યાં માથાકૂટ થઈ હતી અને હું ત્યાં દુકાને દૂધ લઈને ઘરે દૂધ લેવા જતો હતો. હજી એટલી વારમાં મને બધા પોલીસવાળા મારવા પડ્યા. કેટલા જણા હતા? ટોટલ 10-15 જણા હતા, પણ 4 જણા મને મારવામાં હતા. મારવાનું કારણ ભાઈ? કારણ એ કે ત્યાં માથાકૂટ થઈ હતી ને પોલીસવાળા બધા આવ્યા હતા. અને હું દૂધ લેવા જતો હતો ઘરેથી. હું કામેથી આવ્યો છું, મજૂર માણસ, હું કલર કામ કરું છું. અને હું કામેથી આવ્યો દૂધ લેવા જતો હતો. મમ્મી કે દૂધ લેવા જતો હતો કે રસ્તામાં જ મને 4 જણા એ મારવા પડ્યો. આ વિશે પોલીસ ફરિયાદ કરવાની એની પર? અમારે પૂરેપૂરી ફરિયાદી લેવાની છે, કેમ કે નિર્દોષ માણસને મારવા આ રીતે કઈ પોલીસ વાળાને પૂછપરછ તો મને કરવી પડે ને સાહેબ. ભાઈબંધ તારું નામ? મારું નામ છે સાહિલ. સાહિલભાઈ ક્યાં રહ્યો તમે? સિત્તેર જામડા 25 વારિયામાં. શું બનાવ બન્યો હતો? ને હું ટ્યુશનેથી આવતો હતો ને ભાગ લેવા જતો હતો તો પોલીસ વાળાની રેડ પડી તો આડેંદળ બધાને મારવા મળે. મને ને એક મારા મિત્રને બેને માર્યા ખોટી. અમે ઘરે જતા હતા તોય પણ અમને માર્યા. કેટલા પોલીસ વાળા હતા? કેટલાય હતા. કયા ડિવિઝનના પોલીસ વાળા હતા? વટેજ વાળા બધા ભેગા હતા. વટેજ વાળા હતા. મારવાનું કારણ શું છે તમને? પેલા વાઘરી બાયદા એમાં. એટલે માથાકૂટ બીજાની હતી ને તમને લોકોને માર્યા છે? હા. કેટલા જણાને માર્યા છે પોલીસ વાળાએ? મને કોલા ભાઈબંધને પછી કોલા અજયભાઈને બધાને મારેલા છે. તમે અત્યારે કઈ જગ્યાએ આવ્યા છો? दवाखाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और भीमताल सड़क हादसे में घायलों का सुशीला तिवारी अस्पताल में जाकर हालचाल जाना। बता दें कि भीमताल के पास सड़क हादसे में रोडवेज की बस गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 23 लोगों का इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। सीएम धामी ने डॉक्टरों से घायलों को बेहतर इलाज दिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सड़क हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और सड़क हादसे को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जाने की बात कही, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। देखिए, सभी घायलों को जो जरूरी इलाज है वो यहाँ पर हो रहा है और इनको हायर सेंटर रेफर करने की आवश्यकता है या जिनको उनको ले जाया जा रहा है। 2 यहाँ से अभी तक हेली से 2 लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है। अन्य भी जो 3-4 लोग और हैं जिनको एम्स ऋषिकेश ले जाना है, अन्य हायर सेंटर ले जाना है।
उसके लिए डॉक्टर वहाँ से आ गए हैं। वहाँ के विशेषज्ञ श्री मधुर उनियाल और उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। थोड़ा विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी ठीक होते ही उनको ले जाया जाएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और उनका समुचित इलाज हो। जो इस दुर्घटना में जो दिवंगत हुए हैं, मैं उनको सबको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को ये जो कष्ट आया है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम पूरी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कर्नाटक के हुबली में विधायक प्रसाद अभय ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि आज हमने दुनिया के सबसे महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को खो दिया। 2013 में पहले चुनाव में उनके साथ मंच साझा किया था। प्रधानमंत्री ने 10 साल देश के आर्थिक विकास के लिए काम किया है। उनकी आत्मा को शांति मिलने की प्रार्थना उन्होंने की। ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ದುಃಖದ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತೇನು 2013ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಚುನಾವಣೆ, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ದೊರಕಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಈ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ನಂಟು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಂಜಾಬಿ ಡಾಬಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ. ಅವರು ಆಗಾಗ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಂಟಿದ್ದಂಥವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ 10 ವರ್ಷ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಶನ ನಡೆಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅವರ ಅಪಾರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामीण कल्याणकारी समिति द्वारा फेरूपुर डिग्री कॉलेज में आयोजित 23वें कंबल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। मंत्री जोशी ने सैकड़ों निर्धन, विधवा और दिव्यांगजनों को कंबल वितरित किए और समिति के कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि समिति पिछले 31 सालों से जरूरतमंदों की सेवा कर रही है और अब तक 20,000 से अधिक लोगों को कंबल वितरित कर चुके हैं। इस अवसर समाज सेवियों को सम्मानित किया गया और मंत्री जोशी ने समिति के सभी सदस्यों को बधाई दी। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष राकेश गिरी समाज समेत कई लोग उपस्थित थे। ग्रामीण कल्याणकारी समिति हरिद्वार, इसके संरक्षक आदरणीय स्वामी जी है, उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, इन्हीं के अंदर भगवान होता है। ये समाज के वो गरीब व कमजोर लोग हैं जिनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो कंबल खरीद सकें, आज उनको कंबल वितरण यहाँ पर किया गया। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर काम करती है कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, दीनदयाल जी का वो चिंतन, उसको साकार करने का काम ये समिति कर रही है। और इस अवसर पर मुझे ये बताया गया कि पिछले 30-32 साल से कर रही है और इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्य भी समिति कर रही है। देखिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है ना, हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो उसमें आम संतुष्टि भी मिलती है और लोगों की सेवा भी होती है और हमें इस प्रकार के काम करते रहने चाहिए। और आज मैं इस अवसर पर मैं स्वामी जी को, उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई। गुजरात के अमरेली के
नीलवड़ा गांव में दलित और क्षेत्रीय समुदाय के बीच हुए विवाद में दलित युवक की पिटाई के बाद मामला तुल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों शिवा भाई ढाडल और लाला भाई ढाडल को मारपीट और जातिगत अपमान का मामला दर्ज कर एक आरोपी गिरफ्तार किया है। इस बीच आरोपी की बहन किरणबेन वाला, जो बाबरा पुलिस में तैनात है, उसने पुलिस पर प्रताड़ना और सस्पेंड करने की धमकी का आरोप लगाते हुए जहरीली दवा पी ली है। उन्हें गंभीर हालत में अमरेली सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किरणबेन के भाई ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि उनकी बहन को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग की। दलित समाज ने भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले ने प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। બનાવમાં મારા નાના બેન છે બાબરા પોલીસ સ્ટેશનમાં જોબ કરે છે, સર્વિસ કરે છે પોલીસમાં, અને મારા નાના ભાઈ જે છે ને એને કઈક લીલોડા ગામે બનાવ બન્યો છે, એટલે એ બાબતે એ ભાઈ મળતા નથી, 4 દિવસથી ફરાર છે, અને એની ન મળવાના કારણે આ લોકોએ અત્યારે પોલીસ વાળાએ 4 દિવસથી મારા બેનને ઓન પેપર રાખ્યા છે, નથી અમને કોઈને મળવા દેતા, નથી કોઈ પ્રકારનું કંઈ કરવા દેતા, અને નથી બહાર આવવા દેતા, અને અમે લોકો ત્યાં જાય છીએ, અવારનવાર ધક્કા ખાઈ છીએ, તો કોઈ પ્રકારનો અમને જવાબ દેતા નથી, અને અત્યારે અમે કોર્ટે અમરેલી આવ્યા તો એમને ટેલિફોનિક ખબર પડી કે અમારે આ બેનને કંઈક દવા જેવું પ્રવાહી પીધું છે પોલીસ સ્ટેશનમાં, અથવા પીવડાવવામાં આવ્યું છે, અમે જાણતા નથી, અને ત્યાંથી સિવિલ હોસ્પિટલે લઈ ગયા હતા, અને ત્યાંથી અમરેલી આવવા માટે નીકળી ગયા છે, અને અમરેલી આવ્યા પછી આ લોકોએ પેલા પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં હું રૂબરૂ જઈ મારા બેન સાથે જોઈ, અને ત્યાંથી આ લોકો મને અહીંયા સિવિલ હોસ્પિટલમાં લેવા નતા દેતા, માંડ કરી માથાકૂટ કરીને હું સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ આવ્યો છું બેનને। તમને જાણ કોને કરી આ બાબતની? જાણ તો સાહેબ અમારે ત્યાં વાયા બધા ભગાવાલા ભેગા હોય તો એકબીજાના ટેલિફોનની ખબર તો પડી જાય ને સાહેબ। અને આ બધું જે કામ અમારે આપણે અંદર નામ ભૂલી ગયો સાહેબનું, એસીપી ગઢવી સાહેબ છે, એમના ઇન્ચાર્જમાં આ બધું વહીવટ તંત્ર ચાલે છે, અને મને એવું લાગે છે કે મારા નાના ભાઈ જે છે એક રવિભાઈ કરીને એને ત્યાં અત્યારે અરેસ્ટ 4 દિવસ પહેલાના કરી લીધા છે, અને અત્યારે જેલવાળે કર્યા છે। જ્યારે બનાવ બન્યો ત્યારે મારા નાના ભાઈ રવિભાઈના ત્યાં હાજરી નથી, એનું ટેલિફોનનું મોબાઈલનું લોકેશનથી માંડી તમારે જોવું એમ જોઈ શકો છો, એની કોઈ પ્રકારની હાજરી ત્યાં છે નહીં, ની આ બનાવમાં ક્યાંય છે નહીં, છતાં એની હારે ખોટી રીતે ટોચન કરી એની માર માર્યો છે। અત્યારે કોર્ટમાં એક પગે લંગડા હાલતા હતા દુલાભાઈને, એટલે માર માર્યો છે, અને એનું કોઈ પ્રકારનું, અને એની સિવાય અમારા સગાવાલાના અંદાજે 10 થી 12 જણાને લઈ આવ્યા છે, એમાં 2 જણા અવારનવાર આખો દિવસ બેસાડીને મોકલે છે, એમાં આજની તારીખમાં 2 મારા સગા પોલીસ સ્ટેશને સવારના બેઠા છે। અત્યારે આ બધો બનાવ બન્યો ને એટલે 2 જણાને અત્યારે જવા દીધા, અને ત્યાં અંદર એક મહિલા કોન્સ્ટેબલ છે રાઠોડબેન, એ આ બેનને અવારનવાર છેલ્લા 4-5 દિવસથી બહુ હેરાન કરે છે, એ અમને સમાચાર મળ્યા, અને અંદર ભાઈ જેથી અરેસ્ટ બેનને એની અંદર રાખ્યા છે ને તેના રોજ રાતે 12 વાગે બાટલા ચડાવવા લઈ જાય છે, એની થોડીક તબિયત ખરાબ હતી, અને છતાં આ કોઈ કઈ ધ્યાન દીધું નહીં, બહાર જવા દીધા નહીં, અમને દવા લેવા દીધી નથી, ત્યારે 4 દિવસે અમારે આ પરિણામ ભોગવવું પડ્યું છે। હવે બેનને કઈ થશે અને કોઈ પ્રકારનો બનાવ બનશે તો હવે જવાબદારી સાહેબોની રહેશે। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार की देर शाम एक स्कॉर्पियो कार ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि गाड़ी हापुड़ से दिल्ली की ओर जा रही थी। हादसे के बाद चालक ने यू टर्न लिया और फिर कई अन्य लोगों को भी टक्कर मारी। इस हादसे में अलग अलग बाइक पर सवार 2 लोग गाड़ी की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं अन्य घायलों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया गया है। आज पिलखुआ क्षेत्र अंतर्गत शाम को करीब 6:15 बजे एक सूचना प्राप्त हुई एक्सीडेंट की कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी के द्वारा बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों लोगों को अस्पताल उपचार हेतु रवाना किया। अस्पताल पहुंचकर वहां जानकारी प्राप्त हुई कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है। घटनास्थल से ही
स्कॉर्पियो गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। 2 लड़कों की जिनकी मृत्यु हुई है उनके नाम पते ज्ञात हो गए हैं और उनके परिजनों से संपर्क कर FIR ली जा रही है, दर्ज की जा रही है। साथ ही गाड़ी में मौजूद चालक एवं अन्य लोगों की जानकारी करके टीम रवाना की जा रही है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।